Hey everyone, welcome back to my classes, and this time we're going to solve exercise 4.3 question number 1. So without wasting time, let's start this one. This is the thing. Okay, we're going to solve this one. Let me write the question first. I'm going to solve this one. 2x square, this is minus 7x plus 3 equal to 0. Okay, this is 7. You can see the question. This is our question. Okay, now you see, first of all, if you have watched my conceptual video, then you can understand it very easily. If you have not watched it, then please just go and watch it now. And okay, if you have not watched it, then I'm just starting that one if you want to continue with this same thing. So okay, let's try the solution first. Okay, this equation, you see, let me explain what you need to do here. Read out that one. Find the root of the following quadratic equation if they exist by the method of completing a square. Completing a square means like you need to make this equation in this form, like a plus b whole square form, and then this is your square. We'll try to make it in this form, and then we'll get the answer, whatever will be the answer. So let's start. First of all, you need to divide this one, if you have seen that video. Okay, we'll try to make this one alone. Okay, we'll try to keep x, whatever x square will be alone, no number. Okay, if there is 2 number, then you divide by 2. If there is 3 number, then you divide by 3. So whatever number will be there, you divide it so that it will cancel 3, and then you will have the x square. Okay, you can one more thing you can do, that if you don't want to cut, then you multiply with the, if there is 2, then you multiply with the 2, so it will become 2 to the 4. So 4 will be the, like, if your square root of 4 is 2. Okay, so you can write inside the bracket, means 4 को हम लिख सकते हैं 2 square, isn't it? Now we can write like this. So this one, let's divide first without wasting time. Okay, let me tell you one more thing, that if I write in a blue line, it's up to you. If you don't write, then also no problem. Okay, I'm going to divide this whole equation. This is just for understanding, equal to 0. One more thing, that if you have studied in class 9 equalate, like that one, chapter 5 NCERT book, if you have studied, if we add one, if there is equal sign, and if we add one side, then we need to add another side also, because this shows equal. Okay, because of this is equal, so that's why I'm going to divide this side, and this side also I need to divide. Okay, this is just for understanding sake. Okay, so this divide will be like this: 2x square by 2 minus 7x by 2 plus 3 by 2, and we know that 0 divided by 0 is 0. Now this 2 and this 2 cancel, so we'll have x square. Okay, just wait a second, I'm going to change the pen. You can write x square minus 7 by 2 x 3 by 2 equal to 0. Is it understandable? If you understand this, if you understood this, then hit the like button so that I can know that you have understood this one. So let's see the more part, like what do we need to do after this. Okay, this is done. You can write implies, and remember, we can write this implies only if there is equal sign. Okay, so let's say this one. Okay, what you need to do right now from here, one thing is that we can just x square. Okay, let me write like this. I can take this one to the another side if you wish. If you don't wish, then also okay. So if I bring this side, then it will be minus 3 by 2. Can you understand this? You see, this is plus, isn't it? So if I take on the other side, then this will be minus 3 by 2. I think it's easily understandable. Now you see, as I told you in the beginning, that we need to make a plus b whole square form, isn't it? I told you that one. Okay, because our question is asking that one. Now here, you see, x square. What is the formula of a square? X square plus twice ab plus b square. You see, x square is here. Here is also x square.
we need to find 2ab and b square. Okay, so for that I will give you the most easiest thing you can learn here. That two things I will show you. You can write like this: minus, as there is minus twice a is this one x, and b. You say what can it be b? You see here, what is the main thing here? 7x by 2. This is the thing. We cannot change the number. Okay, we cannot change the value. So this must be there. After adding, minusing, जो भी करने के बाद ये नंबर रहना ही पड़ेगा. अब देखो, तो यहाँ पे b क्या हो सकता है? x भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया. अब ये 7/2 ही है ना? 7/2. लेकिन अगर मैं 7/2 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे तो 7x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7x नहीं है. क्या ये 7x बराबर है? तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं. ओके, वी कैन कट इन मल्टीप्लाई. ये 2 कट के, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे 7x तो ये बराबर है नहीं. तो मुझे मतलब ये नंबर चाहिए किसी भी हालत में. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम बहुत ही आसान से कर सकते हैं. लाइक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4. समझ में आ रहा है? 4 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे जब इसे काटोगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, यू सी यहाँ पे क्या बचा? सेम 7 है, x भी है, यहाँ पे भी है. ओके, ये 2 है जो नीचे, ये भी 2 है यहाँ पे. क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, जस्ट इसे मैं पूरा कर रहा हूँ. अभी देखो फॉर्मूला क्या? बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ये 2ab, मतलब ये मैं इस फॉर्म में देख रहा हूँ, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला है जो b हो गया है ना, तो हम आराम से बी स्क्वायर लिख सकते हैं. 7/4 स्क्वायर. क्या ये समझ में आया? है ना? क्या ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो भी हम देखेंगे दूसरा वाला, सेम पहलू हम देखेंगे. विल सी दैट वन. अब देखो ये जो है, अब मैथ्स में क्या सीखा है कि कोई भी नंबर जहां यहाँ वहां से आता नहीं है. हमारा मर्जी नहीं चलता है कि कोई भी अचानक हमने नंबर डाल दिया. देखो यहाँ पे क्या ये नंबर है? इज दिस नंबर इज देयर? मीन्स क्या ये नंबर है यहाँ पे? कहीं पे भी है? नहीं है, यहाँ ब्लैंक है. तो ये एक अननोन सा नंबर है ना, मतलब एक जिसे हम जानते नहीं. अपने मतलब आ गया, हमने ट्राई किया है कि इसे a+b होल स्क्वायर फॉर्म में डालने के लिए, और ये है जो कुछ इस तरह से आ गया. लेकिन रियलिटी में ये नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हमने देखो क्या सीखा था? अगर 2 इक्वल टू, मान लो कि 2 है ना, 2 इक्वल टू 2 है. मैं अगर इधर 1 लिखता हूँ, इक्वल साइन है, तो यहाँ पे भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा. तो ये इक्वल साइन है, तो अगर मैंने 7/4 स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, तो मुझे इस तरफ भी क्या लिखना पड़ेगा? प्लस 7/4 स्क्वायर. क्या ये समझ में आया? क्योंकि ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना. इफ दिस विल गो दिस साइड, दिस विल बिकम माइनस. यहाँ पे प्लस है, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? यही मेन वाला. इसके अलावा कुछ और तो बचेगा ही नहीं, है ना. क्या ये समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है. अगर नहीं आया, इसी का एक और लाइन दिखाता हूँ. ये वाला लाइन अगर तुम्हें स्पेशली समझ में नहीं आया, तो हम यहाँ पे एक लाइन है जो देख लो, भागो मत जल्दी से. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अभी देखो हमारे पास जो था, एक काम करता हूँ, मैं एक बार इससे लिख लेता हूँ. अच्छा, यहीं पे मैं दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर. ओके, ये दूसरे पेन देखो, जो भी रेड पेन में उसी को लिखो, जो दूसरे कलर में होगा उससे मत लिखो. अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो. एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैन टू मैन पॉइंट लिख सकते हो अगर चाहो तो. अच्छा, एग्जाम की बात नहीं करेंगे, सीखने के ऊपर बात करेंगे. ओके, नो मोर एग्जाम. सीखो, कुछ यूटिलाइज करो. ओके, लेट्स सी दिस वन. यहाँ पे क्या था? x स्क्वायर है ना, माइनस 7/2x. ये वाला लाइन लिख रहा हूँ. ये x है इक्वल टू माइनस 3/2. अभी देखना, कभी भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनी नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देना. क्या मल्टीप्लाई करने को कहा मैंने? यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ,
मैं इसे जैसा है जैसा है मैं वैसा ही छोड़ देता हूँ 7/2x, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया तो यूज आता ही नहीं है ना, यूज होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे देखो x² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², अगर तुम्हें ये और ये मिल गया तो बात खत्म, हम डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये और ये मिल गया तो हम बीच वाले को उतना ध्यान देंगे नहीं, हमें इसे फैक्टराइज करके भी कोई फायदा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें इसका b² निकालना है। b² निकालने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका हाफ मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसे हाफ मल्टीप्लाई करके हम उसे वहां पे बैठा देंगे। अब 7/2 में ये हाफ क्यों कहा, मान लो कि अभी यहाँ पे 5 होता, अगर 5x अगर होता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे 5/2। क्यों मैंने ऐड किया 5/2, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ट्वाइस a और b होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो 5x है, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई किया ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, बचेगा कितना 5x। देखो दिस इज द थिंग, शायद थोड़ा सा झमेला लग रहा है, अगर देखो बेसिक नॉलेज है देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस वन। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 7/2 है, मैंने क्या कहा था कि 7/2 अगर होता है तो यहाँ पे भी हम वैसा कर सकते हैं। क्यों वैसा कर सकते हैं, उसका रीजन है सिंपल सी, क्योंकि ट्वाइस ए बी होता है फॉर्मूला, हम ट्राई करेंगे इसी फॉर्म में ही हम ट्राई करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर ट्वाइस ए बी का फॉर्म लिखते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 7/4² लिख सकते हैं इक्वल टू, तो लेकिन एज हमने कि यहाँ पे जो भी ऐड किया तो हमें उधर भी ऐड करना ही पड़ेगा, प्लस 7/4²। ठीक है, देखो ये जो है मैंने जो समझाने के लिए हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, एड एंड बोथ साइड कर सकते हो। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई, बस इतना ही, कुछ भी नहीं, जो भी होगा वहां पे नंबर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो कि तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद हो तो, अगर नहीं पसंद है तो चलते हैं हम वो पहले वाला मेथड ही अप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट लाइन है, हमें यहाँ पे देखो x और ये हम रेड में लिखते हैं। अभी क्या होता है, ये ऑरेंज है नॉट रेड। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये आसान हो चुका है, क्योंकि a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b², तो हम डायरेक्टली इसे हम उल्टा जिसके फॉर्म है उससे बढ़ा दें, माइनस क्या 7/4, क्योंकि यहाँ पे b है ना, a² माइनस b², तो a माइनस b जो भी होगा वही ना, तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म में देखो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है ना, क्या है इसका a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², यही तो फॉर्म में है ना ये वाला, तो ये फॉर्म में आया, तो हम अगर ये फॉर्म में है तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं आपका, है कि नहीं, तो ये फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मुझे काटना नहीं था ये वाला माइनस देखो अगर माइनस तुम्हें प्रॉब्लम है आगे में, तो देखो प्लस माइनस में हम ये एसोसिएटिव होता है, मतलब आगे पीछे कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस वन फर्स्ट, बट ब्रेक करते हैं। 7² मतलब 49, ओके, 4² मतलब 16, -3/2, एक ही बात है, अलग नहीं है। मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही साइड है, तो पहले माइनस करो प्लस करो, एक ही बात पड़ता है। ओके, देखो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा वीडियो जरूर निकालूंगा इसके ऊपर, लेकिन मुझे बताओ, लेट मी नो। ओके, सो आफ्टर हियर हम क्या करेंगे, हम सेम टू सेम ऐसे रहने देते हैं, ये वाला हम इधर के एरिया को देखेंगे। ठीक, अब देखो 16 और 2 एलसीएम अगर आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो देखो हम एलसीएम लेंगे। अभी ये देखो कौन सा टेबल में दोनों आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 8 एंड 2 1। अब तो कोई भी टेबल यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये 2 16। नॉर्मली सेम टेबल में जब भी होगा तो बड़े नंबर को ले लेंगे, हमें इतना माथा मारने की जरूरत नहीं, 2 नंबर के बीच अगर होगा तो। ठीक है, अगर सेम टेबल में। अब देखो 16 इसे डिवाइड करेगा तो 16 डिवाइड 1 into 49 विल बी 49, माइनस 16 इसे डिवाइड करेगा तो मिलेगा 8, है ना, 2 8 16, 8 into 3 24। अब देखो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। माइनस करो 49 25 गया और 24 गया 25 और ये 6। क्या ये समझने लायक है या नहीं है? ओके,
है तो चलो चलते हैं आगे। ये x है, ओके। पता नहीं मुझे, मेरा जो कंप्यूटर में लिखना थोड़ा प्रॉब्लम है, दिख पा रहा है, मैं उतना अच्छा से बैठ नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी भी ऐसा होता है। यहाँ पे मैं साइड में दे रहा हूँ किसी और कलर पेन से। मान लो ये स्क्वायर है ना, इक्वल टू अगर 4 है मान लो, तो क्या होगा कि ये स्क्वायर है जो इसके पावर, इसमें पावर क्या होगा 1, कुछ भी नहीं। तो कभी भी याद रखना जो पावर को ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 1 है ये इसके नीचे, ओके। सो दिस विल x, और एज आई सेड, if you have taken my previous classes, this half means root over 4, isn't it? So here the square, so I'm going to leave this one like this. अच्छा ये लिख सकते हो लाइन, तो ये सॉरी ये नहीं, यही पेन यूज करते हैं। Now actually no need to write this cover. If you don't need then you can cut, okay. ये x है हमारा, तो अभी क्या करेंगे, ये जो इधर आ जाएगा रूट ओवर 25/16। ये इक्वल साइन है, इसे यू सी डोंट राइट एनी मिस्टेक, दिस इज इक्वल साइन ओनली, ओके। सो अभी ये रूट ओवर, नाउ फ्रॉम हियर यू सी रूट ओवर में जब भी अगर कोई नंबर होता है तो याद रखना वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। क्यों मैंने कहा, लेट मी टेल यू। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 × 2 है ना, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है ये माइनस हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ से देखो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस 4, यहाँ पे भी क्या होगा 4 ही होगा। तो रूट ओवर इसका क्या होगा, तो ये 2, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख देते हैं, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं इफ यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ रूट ओवर अगर पता हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 25 को मतलब 5 × 5, 16 का मतलब होता है 4 × 4। नॉर्मली क्या होता है रूट ओवर, जब भी दो सेम नंबर हो है ना एक ही जगह पे, तो हम एक निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे 2 है तो एक निकाल लिया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक निकाल लिया। और जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने लिखा, तो माइनस ठीक से नहीं आ रहा है, ये प्लस और माइनस। क्या ये समझने लायक है? You see, your understanding is important for me. If I'm not able to make you understand all this thing, then simply my teaching is wasteless. Okay, means it's not useful. So here we got this one. Okay, now we can do one more thing. Either 7x minus 4. You see here two signs. One is positive and one is negative. So let me do first positive. If you don't write positive, then also okay. Or I'm going to write here x minus 7/4. This is 4. Sorry, it seems like 9. 4 again. This it's not working. Why? Okay, something happened. I think this is 4. Okay, this is 4. So this time we're going to take negative 5/4. Is it understandable? You see, you write by pausing video in each section. Now you see, we need to find x, isn't it? So if we need to find x, then what we'll do? Here 5/4 is there. We'll send this on this side. This is minus, so it will become positive 7/4. And this side is minus 7/4, and this will go this side. It will be positive 7/4. Can you understand this? Okay. Now same LCM, so I'm going to write 4. If you divide it, then you'll get only 1 only. This side also 7. So same, you can just write upside. X is equal to 12/4. It means, you see, it's divisible. 4 1s are 4 and 4 3s are. So your answer is 3. And this side, let me take the LCM. Minus 5
if you divide 4, divide by 4, 1 into minus 5 is same, and this is plus, this one also, and this side is minus. If you see minus, this will be 2, okay, and this side is your 4. So actually we can cut 2 1s are 2 and 2 2s are, so we can say equal to 1 by 2. So we can say hence the roots of equation are 3 and 1 by 2. This is and, okay, and this much only. I hope you have learned something. You see, we already discussed about this thing in your conceptual videos. I have explained what is the use of this subject, what is the use of this mathematics, where you can use it. So if you have any such problem, please go and watch those videos. Enjoy those videos. Try to enjoy, okay, because if you think it's boring, then you cannot study. Simple. So for now it's up to this much only, and if you have some doubt regarding this, then please comment, and then thank you so much for watching this one. Keep learning.